Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are having a good time. So once again with the continuity of the lectures on the mock interview for the post of English lecturer. So through this video I have taken up few important questions from English literature and linguistics, and I have been trying to answer them to the best of my knowledge and to the best of my skills. So, in this regard, the first question is, what are poetic devices, and explain euphemism with example. So, the first part of question is, what are the poetic devices? Basically, the poetic devices are is a sort of style of language which is used in the poetry, because poetry is the different genre from other genres like drama, novel, short story, and so on. So poetry, uh, in poetry we use rhythm, we use sound, we use intonation, we use the flow of the words to create the poetic effect, right? So for to create the poetic or the music and the flow of words into the poetry, we use the poetic devices. There are very a number of poetic devices that poet uses in the poetry. For example, onomatopoeia, rhythm, assonance, uh, epiphora, anaphora, uh, simile, metaphor. So these are the poetic devices that poet use in their poetry. So the second part of question is the euphemism. Basically, euphemism is a literary device which is described like, in language there is a mild there are mild phrases. Okay, there are some rough phrases used in the language. So when the people try to gloss over, when people try to say or write the better form of words instead of those wild and rough sentences, so this phenomena becomes the euphemism. For example, there are a number of examples. People say someone died, so this is a rough and wild and rough phrase or sentence. So instead of this, we can use he passed away or he met with his forefathers. Second question is, the word is genocide. The genocide is a wild word. So euphemism of the genocide would be ethnic cleansing. Ethnic cleansing is a euphemism for genocide, right? So this is the answer to the question asked. तो सेकंड क्वेश्चन, दूसरा सवाल जो है वो है भाई, व्हाट इज द कोड हीरो एंड व्हाट इज फॉइल इन द स्टोरी. अभी कोड हीरो, आपको पता होगा कि कोड हीरो हेमिंगवे की क्रिएशन है. मतलब कोड हीरो का मतलब होता है वो कैरेक्टर, वो अ कैरेक्टर हु अपहोल्ड्स हिज आइडियल्स, हिज आइडियाज, हिज आइडियोलॉजी, his honor, his courage, high and on the peak, even in the face, all the times, even in the face of troubles, problems, and tough situations. In the tough situation, even though he does not quit, he does not give up, but he upholds to his ideals, and he fights with he fights for the defense of his ideals. मतलब जितनी परेशानी में वो अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ता. तो इसने हेमिंगवे ने कहा है कि जो सेंटियागो है वो गॉड हीरो है. उसके साथ दूसरा सवाल था कि फॉयल हीरो. फॉयल हीरो बेसिकली स्टोरी में एक सब मैन कैरेक्टर होता है, मतलब जो मैन कैरेक्टर्स के साथ जिसका कंपेयर किया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल, अगर हम देखें हैमलेट में, तो उसका जो मैन हीरो हीरो है वो है हैमलेट खुद. अगर हम कोई दूसरा हीरो उसके कंपैरिजन में लाएंगे, उसकी उसके साथ एनालॉजी में लाएंगे, या कोई पोलोनियस हो, लाइट्रियस हो, तो वो फॉइल कैरेक्टर बनता है स्टोरी में. थर्ड क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन क्रेडिबल एंड क्रेडिटेबल. अभी जो क्रेडिबल होता है, क्रेडिबल का मतलब होता है बिलीवेबल, समथिंग दैट वी कैन बिलीव ऑन. ठीक है. फॉर एग्जांपल ट्रस्ट वर्दी जिसे हम कहते हैं. ठीक है. तो जैसे कि हम कहते हैं कि भाई अमीन इज क्रेडिबल पर्सन बिकॉज ही नेवर डिसीव्स पीपल. क्रेडिबल है वो, मतलब काबिल एतमाद है. और दूसरा होता है क्रेडिटेबल,
मतलब प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जाए, और क्रेडिबल जिस पे एतबार किया जाए, और क्रेडिटेबल मतलब जिसकी तारीफ की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स एक मशहूर कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ओडिपस रेक्स इज टेकन फ्रॉम द फ्राइडन साइकोलॉजिकल थियरी, जो कि कहती है कि भाई a son has inborn instinct of inclining into the incestuous or the sexual relationship with the mother। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो इमोशनली और फिजिकली बहुत ही, जब छोटे होते हैं तो कनेक्टेड होते हैं अपनी माँ से, तो वो आगे चल के जो अडल्ट होते हैं तो वो दे ट्राई टू बिल्ड अप दी सेक्सुअल द इंसेस्टुअस जो इंक्लिनेशन होती है वो अपने मदर से क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इसे ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसके कॉन्ट्रास्ट में इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स है, जो मतलब जो औरतों में या बच्चियों में या लड़कियों में पैदा होती है अपने वालिद के लिए, जो अपने उनके अंदर एक इंसेस्टुअस फीलिंग आती है, तो उसे इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस है ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैंग एंड पैरोल। Lang and Parole basically is the concept which has been propounded by Ferdinand de Saro in course in general linguistics। उनका बुक था, उसमें बताया कि Lang is basically the abstraction of language that is present in the mind। मतलब वो जो असूल जो दिमाग में मौजूद हैं और सब दे आर सेम एवरीवेयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज स्पीकर्स। मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, वर्ड फॉर्मेशन है, वो सारे इंसान के जहन के अंदर है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकर है, स्पेनिश है, फ्रेंच है, सिंधी है, कोई भी है। तो ये सारे चीज़ उनके जहन में अंदर मौजूद हैं। तो वो क्या करता है, ये मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो रूल्स होते हैं वो पेरोल होते हैं, ग्लैंग होते हैं। जो पेरोल होते हैं, पेरोल मतलब जब आप उसको एक्चुअली परफॉर्म करें, आप ये इंडिविजुअल पेरोल इंडिविजुअल होता है, और जो लैंग होता है वो कलेक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर पेरोल का मैं मिसाल दूँ, जब आप लिखने की कोशिश करते हैं और या बोलने की कोशिश करते हैं, तो आपका इंडिविजुअल एक्ट होता है, वो आपका पेरोल होता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंग एंड पेरोल। So next question, the last question is what is the meaning of Renaissance। तो Renaissance की तीन मीनिंग है, रीबर्थ, रिवाइवल एंड अच्छा दो दो मतलब है, रीबर्थ एंड रिवाइवल। मतलब रीबर्थ ऑफ नॉलेज, रिवाइवल ऑफ द एनलाइटनमेंट, जो 16th सेंचुरी में यूरोप में रिनेसेंस आई थी, तो इसका ये लिटरल मतलब ये है। तो ये क्वेश्चंस थे। आई होप कि अगर आपने इनको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस और आंसर्स को अच्छे तरीके से याद करें, तो आपको बहुत सारी मदद मिल सकती है अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।